اس 11,000 سے اس ملک کے اندھیرے مٹائے. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے مل کے افواج پاکستان کے ساتھ مل کے کس طرح دہشت گردی ختم کی اور کس طرح سفری اور تجارتی یہ فیسیلیٹیشن کے لیے ہم نے ایک انفراسٹرکچر کا جال بچھایا. آخری بات جناب اسپیکر جس میں ختم کروں گی وہ یہ ہے کہ کرپشن کا نعرہ جو پچھلے 8 سال ہم نے سنا اور لوگوں کو جس پہ بے وقوف بنایا گیا، کرپشن آج عیاں ہے کہ اس ملک میں کس حد تک کرپشن ہو چکی ہے. ادویات کا سکینڈل سے لے کے پولیو جیسے مرض کی اندر جو ہے وہ ہمیں کرپشن نظر آئی، لیکن کسی نے اس کے اوپر کسی کو کوئی جو ہے اس کا الزام آپ نے نہیں ٹھہرایا، کسی پہ نیب کا کیس نہیں کھولا، کسی کے کوئی کو جیل میں نہیں گیا. جناب اسپیکر آخری بات، جناب اسپیکر آخری بات، جناب اسپیکر آخری بات، آٹا اور چینی. محترمہ ناز بلوچ صاحبہ، جی آپ بولیں. محترمہ ناز بلوچ صاحبہ، اپنا ٹائم شروع ہو گیا آپ کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے بجٹ کے اس اہم موقع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا. سب سے پہلے اسپیکر صاحب، وہ تمام لوگ جو PIA کے پلین کریش میں جو شہید ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے، اور وہ تمام لوگ جو کرونا کا شکار ہوئے پاکستان میں اور جو لوگ بیمار ہیں اور جن لوگ کی جانیں گئی، ان سب کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے دعا کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کا آغاز اب آگے کرتی ہوں. جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ پہلے تو جان ایلیا کا ایک شعر ہے جو کہ اس حکومت کے لیے بڑا فٹ بیٹھتا ہے. جان ایلیا کہتا ہے کہ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد دے کہ اب مجھے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد دے کہ اب مجھے، شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں. جناب اسپیکر، یہ وہ حکومت ہے جس حکومت کے کرتا دھرتا کئی سالوں سے لوگوں سے وعدہ کرتے رہے کہ ہماری حکومت آئے گی، روک سکو تو روک لو، روک سکو تو روک لو، پاکستان کسی سے قرضہ نہیں لے گا، روک سکو تو روک لو، ہم GDP کو آگے لے جائیں گے، روک سکو تو روک لو، پاکستان میں بیرون ملک سے لوگ یہاں پہ آ کے نوکریاں کریں گے اور ہر پاسپورٹ کی ہم عزت کریں گے، روک سکو تو روک لو، یہ سب کہا جاتا تھا. تو ہم بھی سوچتے تھے کہ شاید واقعی میں ان کو روکنا مشکل ہوگا، اتنا زبردست یہ کام کریں گے اور ہم بھی بیٹھ کر ان کو داد دیں گے، ہم بھی بیٹھ کے تالیاں بجائیں گے، کیونکہ جب پاکستان کی معیشت ترقی کی راہوں میں جائے گی تو ہر پاکستانی خوش ہوگا. لیکن افسوس در افسوس ہوتا یہ ہے کہ 5.3 پہ ملی گئی GDP کو آپ زمین دوز کر کے دھبڑ دھوس کر دیتے ہیں اور اتنا نیچے لے جاتے ہیں کہ منفی پہ لے جاتے ہیں، 60 سے 70 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں مدینے کی فلاحی ریاست کی، آپ مثالیں دنیا کو دیتے ہیں، مدینے کی فلاحی ریاست کی بات آپ کرتے ہیں اور کرتے آپ یہ ہیں کہ آپ کے کال آف فیل میں تضاد ہے. 13.25 پہ انٹرسٹ ریٹ لے کر آپ گئے ہیں، آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا جب آپ 13.25 پہ سود لے جا کے سودی نظام کی طرف ملک کو دھکیل کے آپ بات کرتے ہیں مدینے کی فلاحی ریاست کی جہاں پہ سود ممنوع تھا. ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تبارک و تعالی منع فرماتے ہیں کہ سود کا لین دین، سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے. آپ بات کرتے ہیں فلاحی ریاست کی، آپ بات کرتے ہیں مدینے کی ریاست کی، تو عمل بھی کریں ان چیزوں کے اوپر. وہاں انصاف تھا، وہاں ایکوالٹی تھی، وہاں جسٹس تھا، وہاں سود ایک 1% بھی سود کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، سود کا تصور ہی نہیں تھا. جناب اسپیکر، انہوں نے بات کی کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے. تو ہم نے بھی سوچا شاید یہ سچ کہہ رہے ہیں، ایسا کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب آپ کی GDP 1% نیچے گرتی ہے، ڈراپ ڈاؤن ہوتی ہے، تو 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اسپیکر صاحب. اور اس وقت جو اعداد و شمار کے حساب سے ہماری GDP جتنی زمین دوز ہو کے دبڑ دوز ہوئی ہے،
2 करोड़ के करीब लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आप मुल्क को धकेल के जा रहे हैं। फिर आपने पिछले साल पूरा मलबा डाल दिया गुज़िश्ता हुकूमतों के ऊपर, तमाम नाकामी गुज़िश्ता हुकूमतों के ऊपर। इस साल आप अपनी नाकामी, तमाम नाकामी जो है वो कोरोना के ऊपर डाल रहे हैं। तो स्टॉप कवरिंग योर इनकॉम्पिटेंस विद द शील्ड ऑफ कोरोना। कोरोना वायरस से पहले आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव, आपकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ नेगेटिव, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव, आपकी इंडस्ट्रीज तबाह हो रही हैं, इंडस्ट्रीज लॉकडाउन हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि बिजली आपने महंगी कर दी, तेल पूरी दुनिया में कीमतें कम होने की वजह से तेल रुल गया है, तेल की कीमत रुल गई है और पाकिस्तान में अवाम रुल गई है, अवाम को तेल नहीं मिल रहा। यह है आपका नया पाकिस्तान। जिस यूरोप की आप मिसालें देते थे, जिस यूरोप की आप मिसालें, जिस वेस्ट की मिसालें आप दिया करते थे, वहां पे 0% इंटरेस्ट है। इस वक्त अमेरिका में 0% इंटरेस्ट है। आप तो उनकी मिसालें देते थे, तो हम सबको करते थे कि शायद 5% से इंटरेस्ट रेट ड्रॉप करके आप 2, 3, 4 पे ले जाके नीचे ले जाएंगे, एक कदम तो बढ़ेंगे आप। लेकिन आपने क्या किया? आपने हॉट मनी के चक्कर में, आपने चंद डॉलर के एवज में, आपने 2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, आपने सूद समेत लोगों को सूदी कारोबार करके यहाँ पे सूद समेत पैसा हमारे मुल्क से वापस गया। इसके जिम्मेदार आप होते हैं। फिर आप फिगर फजिंग करते हैं। फिर होता यह है कि फ्लोर ऑफ द हाउस आके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो स्टेट बैंक से कर्जा ही नहीं ले रहे। आप ये क्यों नहीं बताते कि ये IMF की शर्त शराइत हैं? आपको IMF ने पाबंद किया कि आप स्टेट बैंक से नहीं ले सकते, लिहाजा आप कमर्शियल बैंक से लोन लेकर इंटरेस्ट समेत आप वापस करें। आप कौम को सच बताएं। 30,000 अरब पे इनको कर्जे पे मुल्क मिला। हम सोच रहे थे कि ये अपने कॉलोफेल के ऊपर अमल करेंगे। 30,000 से 43,000 बिलियन के ऊपर आप लेकर चले गए कर्जे 2 साल के अंदर। अगर ये स्पीड, और उसमें भी आप कह रहे हैं कि 5,000 अरब आप कर्जा अदा कर चुके हैं। अगर आपने वो अदा ना किया होता तो हम तो 50,000 अरब पे पहुंच चुके थे। तो किस स्पीड पे, कौन सी ऐसी खाई है जिसकी तरफ आप पूरी कौम को धकेलना चाह रहे हैं? आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है। आप कहते थे कि जो हुक्मरान ईमानदार हो तो लोग आके टैक्स, और एक वजीर साहब होते थे क्या कहा करते थे कि 1 महीने में ऐसे हालात पैदा होंगे, ठेले वाला, छावड़ी वाला सब कहेगा आओ आओ टैक्स दो, आओ आओ हमसे टैक्स लो। वो कहाँ है वजीर? नजर नहीं आ रहे यहाँ पे। तो बातें करवा लें इनसे, सिर्फ इनसे बातें करवा लें। PIA का प्लेन क्रैश होता है, वजीर आजम साहब नहीं जाते। बातें तो ये सुनी थी कि चिली में एक माइन था, उसमें लोग फंस गए थे माइनर्स, तो चिली के वजीर आजम आखिरी हद तक कुर्सी लगा के बैठा था। जब तक आखिरी माइनर बाहर नहीं निकलेगा उस मुल्क का वजीर आजम बैठा रहा। बातें करते थे कोरिया में कश्ती डूब जाती है तो वहां पे वजीर आजम इस्तीफा दे देता है। हम आपसे इस्तीफा नहीं मांग रहे क्योंकि हमें पता है आपने इस्तीफा नहीं देना। हमें पता है कि 70 लोग रेलवे में झुलस गए, कोई इस्तीफा नहीं आया। बातें आप कश्ती की मिसाल देते थे, आप माइंस की चिली की मिसाल देते थे। क्या आप में इतनी अखलाकी जुर्रत इस हुकूमत में थी? काश के कोई वजीर आजम को यह भी उनके कान में सरगोशी कर देता कि कराची में गिरने वाला प्लेन आपका नेशनल कैरियर था, सब्ज हलाली परचम का कैरियर था। आप कराची गए, आप जाते और जाके उस पायलट के घर जाके अफसोस करते तो हमें एहसास होता कि आपको भी वही दुख है जो हमें दुख है। लेकिन आप कराची जाते हैं, आप सिंध जाते हैं, आप सियासत करने जाते हैं। आप बात करते छाबड़ी वाले की, आप बात करते रेडी वाले की। काश अच्छा होता आप लाड़काना में, आप सखर में, आप शिकारपुर में उस तरह जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो झुग्गियों में जाके गरीब अम्माओं के, गरीब माइयों के सर पे हाथ रख के उनके साथ बैठ के एक रोटी खाता था। तभी दिल धड़कते थे लोगों के जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। इसीलिए हम कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है क्योंकि भुट्टो गरीब के दिलों में जिंदा है। जुल्फिकार अली भुट्टो झुग्गियों में बैठी हुई अम्माओं की माइयों को कहता था कि इस लकड़ी में जिस तरह रोटी अपने लिए पका रहे हैं मुझे भी खिलाओ, और फिर बैठ के खा के उनका दर्द समझता था। वो बेनजीर भुट्टो शहीद होती थी जो जाके गरीबों के, एक दिन धमाका हुआ, अगले दिन जाके कारकुनों के मासूम बच्चों को गोदों में बिठा के उनके सर पे हाथ रखती थी, इसलिए वो गरीबों की लीडर थी। अगर वो छाबड़ी वाले की बात करती थी तो जचता था, वो छाबड़ी वाले की बात करती थी तो सूट भी करता था। वो वाकई में अवामी लीडर थे।
वो ये नहीं थे कि बोलते छाबड़ी वाले और डेली वेजर्स की बातें, और 135 डिशेस तवाज़ो की गई वजीर आजम की। आप कहते हैं सिंध में गुर्बत है, सिंध में कहत है, सिंध में तो बहुत बुरा निजाम है, आपकी तो 135 डिशों की तवाज़ो होती है। आप कहते हैं कि ऑस्टेरिटी होगी, मैं दाल रोटी खाऊंगा, मेरे मुल्क में बुरा हाल है, मेरे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरे मुल्क का मजदूर दिहाड़ी पेशा तकलीफ में है, लेकिन नहीं। तो जनाब स्पीकर, कौन सब देख रही है सिंध में जाके बिलावल भुट्टो को और सिंध के सीएम को गालियां देने से आप अच्छे नहीं हो जाते, आपको तमगे नहीं लग जाते, आपकी कारकर्दगी बोलती है, और कारकर्दगी ये है कि आखिरी मिनट है जी मोहतरमा, आखिरी मिनट है, आप अपनी स्पीच क्लोज मुझे करें। थोड़ा दे टाइम। देखें, आपकी कारकर्दगी ये है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपके लिए कह रही है कि आपको मुल्क को मईशत को डिस्ट्रेसफुल इकोनॉमी आपने बना के रख दी है। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करके आपने इकोनॉमी रख दी है। पाकिस्तान की पैरामेडिक एसोसिएशन कहती रह गई आपको कि खुदारा फ्रंट लाइनर्स का ख्याल रखें, उनको मौत के मुंह में न धकेलें, लेकिन आपने एक ना मानी। गवर्नर सिंध कहते हैं ये तो फैशन सिंबल है, लॉकडाउन इज अ फैशन स्टेटस। ये कराची में लॉकडाउन इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि न्यूयॉर्क में, रोम में और बर्मिंघम में लॉकडाउन है। उसके बाद असद उमर साहब कहते हैं कि इससे ज्यादा लोग तो हादसात में, कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। फिर वही असद उमर साहब आके कहते हैं कि 12 लाख अफराद जुलाई के महीने में कोरोना का शिकार हो जाएंगे। हम कौन सी बात आपकी माने? फिर आप कहते हैं घबराना नहीं है। जब कौम घबराना छोड़ देती है तो आप कहते हैं कि जी मास्क पहनो। ये तो हमें अंदाजा नहीं था इस चीज का। तो वेयर आर यू? ये कोई लकी रानी सर्कस समझा आपने इसको? ये कोई लकी रानी सर्कस है? आप मजाक कर रहे हैं? 22 करोड़ कौम के साथ एक्सपेरिमेंट्स दर एक्सपेरिमेंट्स करके आप करना क्या चाहते हैं? इख्तिताम की तरफ ले जाएं अपनी स्पीच। मैं इख्तिताम की तरफ लेके जा रही हूँ स्पीकर साहब। फिर होता यह है कि कारकर्दगी पे कुछ मैं बात करना चाह रही हूँ। इस हुकूमत ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कारकर्दगी, 20 माह में तबाही के रिकॉर्ड। चीनी आपको 50 रुपए की मिली, आप कहते थे रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, एक दिन आएगा जब होगा ऐसा पाकिस्तान। काश के ऐसा होता। 20 माह में 50 रुपए से चीनी 90 रुपए में आपने पहुंचा दी। चीनी चोर काबीना में बैठे हुए हैं। सारे वो तमाम लोग कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट के जिनके कारोबार चल रहे हैं, वो आपके साथ बैठ के हमारे टैक्स पेयर के पैसों से कारोबार चमका रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट कर रहे हैं। गंदम महंगी हो गई, आप प्रोड्यूस करने वाले हैं, गंदम प्रोड्यूस करने वाला मुल्क जो है वो मुल्क से 10 लाख टन गंदम आप अफगानिस्तान भेजते हैं। मेरी एक बात सुन लें मुझे, मैं गुजारिश करूं, अगर आपने काम करना होता तो कासिम सूरी साहब, स्पीकर साहब, आप भी सूरी हैं, आपको तो पता होगा, हमसे ज्यादा पता होगा। एक थे शेरशाह सूरी 500 साल पहले, उन्होंने 5 साल में कराची से काबुल तक जीटी रोड बना दी थी। आपसे तो एक बीआरटी नहीं बनती। 5 साल में ब्लैकलिस्ट कंपनी को देते बीआरटी। 400% दवाओं की कीमतों में इजाफा आप कर देते हैं। फिर आप कहते हैं आपको चांस दिया, आप तो कहीं और निकल गई, 500 साल बाद में पहुंच गई आप। जी मोहतरमा, आप अपनी बात को जल्दी खत्म करें। जी नाज बलोच साहब। इस हुकूमत के हाथों तो हम कहते हैं कि फिर दोबारा जॉन एलिया ने बहुत अच्छा कहा कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। इस दहाने पे आप पूरे मुल्क को लेके जा चुके हैं। खुदा का वास्ता है, ये सियासत छोड़े, आए मिलकर एक हो, एक कौम बने। ये बाबा कौम की तस्वीर सामने लगी है, कम से कम इनका लिहाज कर ले। ये वन नेशन की इन्होंने बात की थी, आज हमें एक कौम होने का सबूत देना होगा। जब वक्त आ गया तो आप खुदा के वास्ते सियासतबाजी छोड़े, आए मिलकर एक हो, इस कोरोना का मुकाबला एक होके करें। और खुदा ना कोई समझा दे हमारे मुल्क के वजीर आजम को कि लॉकडाउन ना करने पे जो तबाही इटली ने देखी, जो तबाही अमेरिका और ब्राजील ने देखी, जो तबाही दूसरे ममालिक ने देखी, उनसे गुजरने के लिए हमें मजबूर ना करें। खुदारा सही पॉलिसीज और सही मते, वैसे तो आपके माशाल्लाह कारनामे ऐसे हैं कि मैं गिनवाती रहूं और कई घंटे निकल जाएंगे। सही जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब कमालुद्दीन साहब।